हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आई है, खुशखबरी सामने आई है। जी हां, दिसंबर के आखिर तक वैक्सीन आ सकती है। ये बात एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही है। इस महीने के या फिर अगले महीने यानी जनवरी 2021 तक इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी कोरोना वैक्सीन को दी जा सकती है। ये संभावना जताई है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने, जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में भी कई वैक्सीन फाइनल ट्रायल स्टेज में हैं, यानी बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन आप लोगों को मिल सकती है। जिन लोगों को जरूरत है उनको मिल सकती है। कोरोना के कहर को किस तरीके से कम करना है, इस लिहाज से ये खबर बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले 11 महीने से लगातार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंतजार हो रहा था कोरोना की वैक्सीन को लेकर, और अब जो खबर सामने आ रही है हिंदुस्तान के लिहाज से वो बेहद खुशखबरी देने वाली खबर है। क्या कुछ कहा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, सुनिए जरा। So this is great news that one vaccine finally has been approved, and in such a short span of time, within 1 year. This is a big boost to all the vaccine manufacturers that the vaccine are being now approved and have a good chance of being available. In India, we have now vaccines which are in their final phase 3 trial, and both the Serum Institute of India and the Bharat Biotech vaccines are in their phase 3 trial. So we are very hopeful that by the end of this month or by early next month, we should get the emergency use authorization from the Indian regulatory authorities to start giving the vaccine to the public. And along with that, we will have our plan in place to distribute the vaccine to those who are to be given as the first priority. So I think there is now good data that the vaccines are very safe. This has been something which has been monitored very, very closely. And although the vaccine development has happened at a rapid pace, this is being done by doing things parallelly, but safety and efficacy has not been compromised at all. Also, I think we must understand that if we look at all the vaccines that have been given in phase 3 trials, the number of people who have been vaccinated are almost 70 to 80,000 or even more. So if you look at that number, then we have not had any significant serious adverse effect as far as the vaccine is concerned, and therefore I think there is a lot of encouraging data that at least in the short term the vaccine is very safe. Long-term follow-up will happen over the next few months to years, and then we will be more comfortable in terms of long-term safety. The vaccine will make a huge difference for the pandemic for two reasons. One is it will help to bring down the mortality. So once we are able to vaccinate the high-risk groups and the elderly, I'm sure that they will be protected and the chance of the mortality will come down. Also, by vaccinating a sufficiently large number of people, we will be able to break the chain of transmission from one person to the other. And if we are able to do that, then the number of cases will come down and we will have a decline, a significant decline in the pandemic. And that will allow us to come back to a near normal situation. तो आप सुन रहे थे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, जिन्होंने तफसील से बताया कि किस तरीके से आने वाले वक्त में कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर आने जा रही है। रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन पर खुलकर पूरी जानकारी दी है। हम वैक्सीन को लेकर अपने खास मेहमानों से भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, एक टीम जुड़ रही है एक्सपर्ट्स की, उनसे भी तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में सबके लिए वैक्सीन मुमकिन नहीं हो पाएगी, प्राथमिकता तय करनी होगी। बुजुर्ग, बीमार और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, ये बात रणदीप गुलेरिया ने कही है, जो अब तक खुद ही ये बताते रहे थे कि हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है रणदीप गुलेरिया ने, सुनिए जरा। So whenever we're going to start vaccinating, obviously in the beginning vaccine will not be available in sufficient doses to give to everyone. So we will have to make a priority list. And our priority list is based on two things. One is to see that we vaccinate those who have a higher chance of dying because of COVID-19. So people who are elderly, who have comorbid condition should be vaccinated. Secondly, those who are the frontline workers, doctors, nurses, the ASHA workers, the police people, the CRPF, who are working in COVID areas for so many months and have a high risk of getting COVID because of the work that they're doing, to protect them and they need to be vaccinated first. So a priority list will be made, and based on the number of doses that is available, the people will be vaccinated based on the priority list. And then gradually we will try and vaccinate more and more people so that the mortality is less
and we have enough people vaccinated so that the chain of transmission of the virus is broken and therefore the cases dramatically come down. तो डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर और क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बताएंगे तफसील से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, जो बात यहां पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं इसका बहुत कुछ मतलब है, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान में मार्च 2022 तक का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा था हर किसी के लिए कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे पहले भी ये बात बोल चुका था कि हम दिसंबर के अंत तक वैक्सीन को लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी बोला था कि हम दिसंबर में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए सरकार को अपनी तरफ से ड्राफ्ट भेज देंगे। ऐसे में अभी क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके ऊपर एक विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि 2 डोजेज में अलग अलग हाफ डोज और फुल डोज में जो ट्रायल के वॉलंटियर्स थे उनको वैक्सीन लगी, और देखा गया कि जिनको हाफ डोज में लगी उनमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, 90% रिस्पॉन्स में आया, और फुल डोज में केवल 62% रिस्पॉन्स आया। ऐसे में कंपनी को ये बोलना पड़ा कि वो दोबारा से एक छोटा सा ग्लोबल ट्रायल करेंगे, जो कि उन्हें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। इसी वजह से ये वैक्सीन थोड़ी सी डिले हो गई, वरना ये वैक्सीन का देखिए पहले भी बात हो रही थी कि क्रिसमस पे ब्रिटेन में ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। अभी आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन में उन्होंने फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दिया, लेकिन वो एस्ट्राजेनेका को पहले देने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन इस वजह से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थोड़ा पीछे चली गई। अब वही इसका ट्रायल भारत ठीक है, लेकिन अभी भी जो बात यहाँ पर डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं उसका मतलब यही है कि जो इस बार का क्रिसमस है या इस बार की जो न्यू ईयर पार्टी है हिंदुस्तानियों की, वो भी कम से कम एक उम्मीद वाली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन की उम्मीद नजर आती है। लेकिन वैक्सीन दी कैसे जाएगी, कुल कितनी डोज होंगी, इसको लेकर भी हो सकता है कि दर्शकों के जहन में कुछ सवाल हो, तो रणदीप गुलेरिया ने उसको लेकर भी साफ तरीके से चीजों को समझाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। ये बात रणदीप गुलेरिया ने कही है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज देने के बाद शरीर में अच्छी तादाद में एंटीबॉडी बनेगी, वैक्सीन का असर कई महीनों तक रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें देखना होगा कि वैक्सीन से किस तरह से इम्यूनिटी बनती है, इस पर नजर रखी जाएगी। क्या कुछ कहा इस मोर्चे पर डॉक्टर गुलेरिया ने, ये भी सुन लीजिए। You will need a few weeks because there are 2 doses. So once the booster dose is given, the vaccine will give within a few days good amount of antibody production and will start giving protection to the individual. And this will last for many months, hopefully for a year or more. And therefore, this will give you protection at least for a significant time. Hopefully, by that time, the cases will have come down, and therefore the chain of the numbers will be less, and we will not need to therefore worry too much. However, we will need to follow this up over the next few months, maybe even 6 months to 1 year, to see what type of immunity does the vaccine give, and is there a chance of reinfection or people getting infected subsequently, and do we therefore need to give another booster dose later on to make sure that the immunity continues for a longer period of time. तो सुना आपने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। एक और सवाल डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपसे समझने की कोशिश करूंगा मैं। ये जो वैक्सीन है इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल अब तक उठते रहे, खासकर इसकी सप्लाई चेन को लेकर, टेक्निकल पहलू को लेकर, कोल्ड चेन को लेकर। क्या उस मोर्चे पर अब सफलता मिल रही है या उस तरीके की दिक्कतें अभी फिलहाल नहीं आने वाली हैं? हम आपको बता दें कि डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, IMA के पूर्व अध्यक्ष हैं। स्वाति माहेश्वरी, देखिए इस वैक्सीन के साथ हम इसीलिए सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि इस वैक्सीन के साथ हमें कोल्ड चेन की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जा सकता है, रेफ्रिजरेशन पे रखा जा सकता है। इसलिए हमें इस वैक्सीन के साथ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पहले ही भारत में कोल्ड चेन एस्टैब्लिश है। हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम 9 बीमारियों के लिए टीके लगाते हैं और उनको भी रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है उन टीकों के, तो वो हमारे पास पहले से है। उदाहरण के तौर पर पोलियो, डॉक्टर माहेश्वरी, उदाहरण तौर पर पोलियो है, मीजल्स है, MMR है, DPT है, हम लोग बहुत सारी वैक्सीन जो हैं इस वक्त लगाते हैं और हम लोग भारत से 2 बीमारियों को खत्म भी कर चुके हैं। पोलियो और न्यूनेटल टिटनस को भारत से हम काफी हद तक खत्म कर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि साल को अंत करने का इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है कि ये जो साल है जो इतनी महामारी और इतनी मृत्यु लेकर आया है उसमें आज हम लोग इतने उत्साहित हैं कि अब 2021 में हम इसे हरा देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर रवि मलिक, क्या डॉक्टर गुलेरिया के इस ऐलान के बाद कोई भी सवाल आपके जहन में है वैक्सीन को लेकर, या आपको लगता है कि अब वैक्सीन के मोर्चे पर कम से कम अच्छे दिन आ चुके हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अगर जनवरी में हमारे भारतवासियों को ये वैक्सीन मिल जाती है, क्योंकि इस वक्त विकल्प हमारे सामने हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने का वैक्सीन ही है,
तो अगर ये हमारे को विकल्प मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी खबर रहेगी। और जनवरी में अगर ये वैक्सीन आ जाती है, क्योंकि देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम सब कुछ इन प्लेस है, तो सिर्फ वैक्सीन के आने की जरूरत है और वो तुरंत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारे देश के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जो कि आने वाला है और ये नए साल के लिए बड़ी अच्छी खुशियां लाने वाला है। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे भी जो ऑक्सफोर्ड ने ट्रायल्स किए हैं और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके, ये वैक्सीन के वैसे भी रिजल्ट्स बड़े अच्छे पुख्ता आ रहे हैं और इन रिजल्ट्स के आने के बाद में जो है ये बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि ये वैक्सीन जो है ये कारगर भी है। ठीक है, तो वैक्सीन के मोर्चे पर हिंदुस्तान में अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन इसी महीने आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है वैक्सीन को लेकर, कोरोना के इलाज को लेकर, तो उन सवालों का जवाब भी हम देंगे। और सवाल क्या हो सकते हैं जो आपके जहन में आ रहे हो, ये भी हम आपको बताते हैं। कि पहला सवाल ये हो सकता है कि देश में कोरोना वैक्सीन कब तक मिल पाएगी। रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर ये बता चुके हैं कि देखिए साहब, इसी महीने के आखिर तक आपको कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। एक और सवाल जो आपके जहन में आ सकता है कोरोना की वैक्सीन को लेकर, वो ये कि क्या सबको कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसका जवाब आईसीएमआर की तरफ से कह दिया गया है, सबको वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जाएगा ताकि कोरोना का दायरा और ज्यादा ना बढ़ सके। एक और सवाल, वैक्सीन देने में प्राथमिकता किसको मिलेगी। ये बात भी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अभी जाहिर की कुछ देर पहले, जिन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना की वैक्सीन के मोर्चे पर कोरोना मरीजों को वैक्सीन लगेगी। जिनको पहले से कोरोना हो रखा है, क्या उनको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। अगर आपके जहन में ये सवाल है तो नहीं, उनको कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी। वैक्सीन बीमारी की दवाई नहीं, बचाव है, ताकि उस शख्स को दी जाए ताकि उसको कोरोना ना हो। जिसको पहले से कोरोना हो रखा है उसको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। वैक्सीन का असर कितने दिन तक रहेगा, हालांकि ये भी जांच में पता चलेगा, लेकिन वैज्ञानिकों को चूंकि इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है, वक्त के साथ ही इंतजार करना होगा कि कब तक इस वैक्सीन का असर देखा जाता है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इंतजार। क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होगा, ये भी कई लोगों के जहन में सवाल है कि क्या इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। ट्रायल में शामिल तमाम वैक्सीन का अब तक मेजर साइड इफेक्ट नहीं नजर आया है। कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट अभी तक के जो ट्रायल्स है उसमें नजर नहीं आया है, यानी मानकर चलिए कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। वैक्सीन के कितने डोज लगवाने होंगे, क्या सिर्फ एक वैक्सीन लगाने से कोरोना नहीं होगा आपको, ये अगर आपके जहन में सवाल है। अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन के डोज अलग अलग हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज होंगी जिसका लगाया जाएगा। क्या वैक्सीन के बाद मास्क और सैनिटाइजर से मुक्ति मिल जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि पिछले 11 महीने से हर कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है, मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन संक्रमण की चेन टूटने तक मास्क से, सैनिटाइजर से मुक्ति मिल पाना मुश्किल है। क्या बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो प्राथमिकता है उसमें बच्चे तो नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों में कोरोना का बड़ा खतरा नहीं है, लिहाजा वैक्सीनेशन में आखिरी प्राथमिकता में छोटे बच्चे रहेंगे। वैक्सीन लगने के कितने दिन बाद एंटीबॉडी विकसित हो सकती है ताकि आप खुद कोरोना से लड़ते रहें, कितने लंबे वक्त के बाद इसका असर दिखेगा। रिसर्च के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका सही आकलन किया जाएगा। यानी ये भी वो सवाल है जिसका इंतजार वक्त के साथ ही हमें करना होगा। वैक्सीन के बाद वर्क फ्रॉम होम से छुट्टी मिलेगी, स्कूल खुलेंगे, ये अपने आप में अगर आपके जहन में एक सवाल है तो इस पर सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें फैसला लेंगी, जो कंपनियां हैं वो फैसला लेंगी। क्या वैक्सीन ओपन मार्केट पे मिलेगी या सिर्फ सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा पोलियो की वैक्सीन की तरह, क्या ऐसा होने जा रहा है। इसे लेकर भी अभी सरकार को फैसला करना है कि उसको किस तरीके से इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो स्वाति महेश्वरी, ये दरअसल में कुछ सवाल हैं जो लोगों के जहन में हो सकते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। इन सवालों का जवाब भी हम यहां पर दे रहे हैं दर्शकों को, ताकि जो चीजें हैं वो साफ रहनी चाहिए। क्या अभी आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है सरकार के स्तर पर, आईसीएमआर के स्तर पर? देखिए, अभी हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीन है वो हम जिस व्यक्ति को लगा रहे हैं, ये बात तो साफ हो गई कि उसको कोरोना से सुरक्षा मिल रही है, लेकिन वो व्यक्ति दूसरे को ये कोरोना फैला सकेगा या नहीं फैला सकेगा, अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा पुष्टि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से नहीं आई है कि क्या ये ट्रांसमिशन को भी रोकेगा या नहीं रोकेगा। तो अभी ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। और दूसरा, अभी कंपनियों ने ये भी क्लियर नहीं करा है कि बूस्टर डोज जो है, 2 डोज तो लगेंगी, वो बात ठीक है, उसके बाद बूस्टर डोज कितने अंतराल पे लगेगी, 6 महीने पे, 1 साल पे, 2 साल पे, उस पे भी अभी और स्पष्टीकरण की डॉक्टर मलिक, वहीं जी डॉक्टर मलिक, क्या आपके जहन में कुछ सवाल, जैसा डॉक्टर स्वाति महेश्वरी बता रही हैं, 2 सवाल उनके जहन में? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सेफ्टी को लेके हमारी पॉपुलेशन किस तरह से इस वैक्सीन को रिएक्ट करेगी। दूसरा ये भी सवाल है कि लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी तक ये बीमारी भी नहीं है, वैक्सीन के ट्रायल्स को भी इतना समय नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म देखना भी हमारे को जरूरी है। और तीसरा क्या वैक्सीनेशन के भी लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं डॉक्टर मलिक?
डेफिनेटली वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि कई बार बाद में भी आते हैं, ऑल्दो ये काफी रेयर होते हैं लेकिन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये जरूर है कि वैक्सीन लगने के बाद इसकी रेपिटेशन कब होगी। क्या ये वैक्सीन की इम्यूनिटी है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी या साल में खत्म होगी, 2 साल में? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका की जवाब समय ही बताएगा, क्योंकि ये नई बीमारी अभी इसको आई 1 साल भी नहीं हुआ, तो इसकी वैक्सीन की इम्यूनिटी कब तक रहेगी ये हमारे को आने तो वाले कुल मिलाकर जो देखना सवालों पड़ेगा। के जवाब हमने आपको दिए, उसके अलावा 4 सवाल और हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, 2-2 सवाल जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि किस तरीके से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है वैक्सीनेशन के मुद्दे पर। ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस वैक्सीन की राह में भारत में आसान नहीं नजर आती है, क्योंकि इसको लेकर कई ऐसी चुनौतियां और मुश्किलें हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत पड़ेगी। फाइजर वैक्सीन को लेकर किस तरीके की चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट पर देखिए। मेरा ये कहना है कि फाइजर ने भी अपने फेज 3 ट्रायल कंप्लीशन के बाद ये बताया कि इसमें 95% एफिकेसी है, बट फाइजर के वैक्सीन में प्रॉब्लम ये है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम है। उसमें -70 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड है स्टोरेज के लिए और लिमिटेड सेल्फ लाइफ है, 48 घंटे की सेल्फ लाइफ है। तो हमारे कंट्री में कहीं भी -70 डिग्री पे स्टोर करना बड़ा मुश्किल होगा और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब पहली दिक्कत को समझाते हैं। फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री में रखना होगा। -70 डिग्री में वैक्सीन पैकिंग तक रखनी होगी। उसके आगे का काम -18 में हो सकता है। -18 डिग्री साधारण बॉक्स में जनरेट किया जा सकता है, लेकिन -70 डिग्री के तापमान के लिए आपको डीप फ्रीजर की जरूरत होगी। इस डीप फ्रीजर पर हमने पूरी रिसर्च की है। ये ऐसी रिसर्च है जिसे आप भी कर सकते हैं। गूगल पर जाकर डीप फ्रीजर टाइप करें, बाईं तरफ गूगल नतीजे दिखा रहा है। देखिए कीमत 3,50,000 रुपए है। डीप फ्रीजर बनाने वाली कंपनी दिल्ली की है, ऑफिस विकास मार्ग पर। मतलब ये कोई बड़ा बर्डन नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि फ्रीज़र किस तरीके से काम करते हैं। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और ये कोविड को लेकर दिल्ली NCR का सबसे बड़ा अस्पताल है। सबसे पहले ऐसे फ्रीजर होते हैं जो आमतौर पे -25 -30 डिग्री सेल्सियस तक किसी भी वैक्सीन को या दवाइयों को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ चाहिए -70 से -90 डिग्री। दूसरे तरह के फ्रीज़र की बात करें, जहाँ पे जो भारत बायोटेक और बाकी कंपनियों की बात करें, वो इसी तरह के एस्ट्राजेनेका की बात करें, ये -8 तक जाते हैं। यहाँ पे वैक्सीनों को रखा जाता है। ये दूसरी तरह के फ्रीज़र है, लेकिन फाइज़र की बात करें वहाँ -70 डिग्री चाहिए। तो -70 डिग्री का फ्रीज़र आमतौर पे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में ही होता है और बेहद कम पाया जाता है। ये पूरा सिस्टम है जो एक साथ कलेक्टिव वर्क करता है। कितने तरह के फ्रीज़र होते हैं और कैसे -70 डिग्री रखा जाता है टेम्परेचर? देखिए 3 तरह के जो हैं स्टोरेज सिस्टम हैं। जो हमारा वैक्सीन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाए। जो कोल्ड चेन होती है, वैक्सीन तभी इफ़ेक्टिव होती है, तभी वो प्रभावी होती है जबकि उसको कोल्ड चेन जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग साइट से जहाँ से लेके एंड यूजर तक उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब सवाल यह है कि देश में पहले से कितने डीप फ्रीजर मौजूद हैं? इसका जवाब जरा समझना होगा। देश में कुल अस्पताल 1,05,416 है। इसमें 35,416 सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें सेना, रेलवे के हॉस्पिटल भी शामिल हैं। करीब 70,000 प्राइवेट अस्पताल हैं। कुल अस्पताल में सिर्फ 20% स्पेशलिटी वाले अस्पताल हैं। अभी तक करीब 7% अस्पताल सुपर स्पेशलिटी कैटेगरी में है।
मतलब अगर देश में 7% भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं और उनमें 10% अस्पतालों में भी डीप फ्रीजर की फैसिलिटी है, तो ऐसी वैक्सीन जो -70 डिग्री में रखी जाती है, उसे रखने में बड़ी समस्या नहीं होने वाली है। देश की आबादी है 130 करोड़। सबको वैक्सीन फिलहाल देने का प्लान नहीं, ये सरकार ने साफ कर दिया है। सिर्फ कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जितनी वैक्सीन की जरूरत होगी उतनी ही फिलहाल दी जाएगी। ये आंकड़ा कितना होगा ये भी फिलहाल तय नहीं, लेकिन करीब शुरुआत में इतने लोगों को वैक्सीन देनी होगी। अगर फाइजर की वैक्सीन दी जाती है तो इसके लिए कम से कम देश के 9 बड़े शहरों में वैक्सीनेशन करना होगा, जिसके लिए इंडस्ट्रियल डीप फ्रीजर की जरूरत होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हम सिर्फ 9 बड़े शहरों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में ये शहर ही कोरोना के एपिसेंटर है।